morning, dear students. I am Satyanarayan Pusala, Assistant Professor, Department of Zoology, Mosinbai Javeri Mahavidyalaya, Desaiganj. So today I have talked about the metabolism of carbohydrate. So this is the unit 1 of BSc Part 2, SEM 3, that is metabolism of carbohydrates. So first of all, what is exactly the metabolism? So metabolism, actually metabolism, it consists of two steps, that is anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism. Anabolism means, ana means up, that is the build up process or synthesis process where the inorganic substances converted into the organic substances, whereas in catabolism it is the breakdown process. It is the breakdown process where the organic substances is break down into the inorganic substances, and this two process which is collectively called as the metabolism. So in this unit we have to discuss about the metabolism of carbohydrates. So first of all, in metabolism of carbohydrate we study the glycolysis pathway. So glycolysis, it is the Greek words. Glycose means sugar or glucose, and lysis means that is the breakdown or dissolution. So glycolysis is defined as, so it is the metabolic pathway in which glucose is break down into the two molecule of pyruvate, or pyruvic acids. So once again I repeat, glycolysis is defined as, it is a metabolic pathway in which glucose is break down into the two molecule of pyruvate or pyruvic acids. So this glucose is not directly break down into the two molecule of pyruvate in single step. It is the multiple step process, or it is the multiple step pathway, so which required the several enzymes, near about 10 steps. After the 10 steps, glucose is converted into the two molecules of pyruvates. So during the conversion of glucose into the pyruvates, so there are some energy is released in the form of ATP, and some amount of energy is released in the form of NADH. Okay, and this NADH that can enter into the electron transport chain or electron transport system to produce more amount of ATP. Okay, so in this glycolysis process actually occur in the almost all cells, because all cells require the energy, and that energy purpose, so glycolysis that will occur in all cells of the body. So when this pyruvate, that in the presence of oxygen and mitochondria, this pyruvate then enter into the Krebs cycle or citric acid cycle. ये कहाँ पे एंटर होगा? Krebs cycle और citric acid cycle, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ATP फिर से क्या होंगे? तैयार होंगे. ओके, सो जब ये pyruvate in the presence of oxygen and in the presence of oxygen Krebs cycle में enter होगा in the form of acetyl coenzyme A. So this type of pathway is, this type of process is called as the aerobic respiration. मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है उसका कंप्लीटली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन कुछ ऐसे सेल्स है जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तब ये पायरुवेट का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में होता है. कहाँ पे होता है? लैक्टिक एसिड. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर पायरुवेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द
anaerobic respiration. Are you getting? So anaerobic respiration और aerobic respiration का मीनिंग क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब पायरुवेट में होता है, और पायरुवेट का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर पायरुवेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टिक एसिड. सपोज हम एक सेल लेते हैं हमारे बॉडी का. ऐसा कौन सा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होते हैं? सपोज सिंपल आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स और इरिथ्रोसाइट जिसे हम कहते हैं. इस आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं. लेकिन हमें पता है कि जो आरबीसी है उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन ये मॉलिक्यूल होता है, और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अब्सेंट है. चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंस हो लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता. तो जो आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स है वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. मीन्स यहाँ पर क्या तैयार होगा? लैक्टिक एसिड क्या होगा? तैयार होगा. सो आरबीसी ये एक हॉनेस्ट ऑक्सीजन क्या है? ट्रांसपोर्टर है, जो सिर्फ क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं करते. कौन? दैट इज द आरबीसी. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप्स है वो पहला स्टेप कौन सा होगा फिर? ओके, सपोज अगर हमें शॉपिंग करना है तो शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पॉकेट में क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए. उसी तरह से अगर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होना है तो हर सेल में ग्लूकोज होना जरूरी है फॉर द एनर्जी टू गेट द एनर्जी. ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो सेल रिक्वायर्ड द ग्लूकोज. तो सेल, हर एक सेल में ग्लूकोज किस तरह से जाएगा फिर? सो इन द नॉर्मल डाइट, हम जो डाइट लेते हैं, सपोज दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दिस इज द इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. इस तरह से क्या है? हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है. ओके, हम हमारा नॉर्मल डाइट ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे. जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे डाइट के अंदर लेते हैं तो उसका क्या होगा? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन होगा डिफरेंट एंजाइम, डिफरेंट जूसेस की वजह से, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मोनोसैकेराइड्स. किस में कन्वर्ट होगा? मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा. ओके, तो ये जो मोनोसैकेराइड्स है ऑब्वियसली आपको पता है ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है या क्या है? गैलेक्टोज है. दीज आर द मोनोसैकेराइड विच आर मेनली एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गट बाय द पोर्टल सर्कुलेशन, जो लीवर के तरफ जाता है. दिस इज द पोर्टल सर्कुलेशन, जहां से ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या जो गैलेक्टोज है वो क्या होगा? सर्कुलेट होगा और पहुंचेगा कहाँ पर? लीवर तक. कहाँ पर पहुंचेगा? ये लीवर तक. और ये लीवर में हमें पता है यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, लीवर सेल, दैट इज कॉल्ड एज द हेपेटोसाइट्स. जिस सेल्स को क्या कहेंगे हम? हेपेटोसाइट्स. सो जो अगर हम बहुत ज्यादा हेवी मील लेते हैं तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज तैयार होगा. ओके, ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ये जो लीवर है, हेपेटोसाइट्स, ये क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं. जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ये हेपेटोसाइट क्या करके रखेंगे? स्टोर करके रखेंगे. बाय द वे, यहाँ पर जो फ्रुक्टोज और जो गैलेक्टोज है, इस फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज भी कन्वर्ट होता है कहाँ पर? ग्लूकोज में. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ हेपेटोसाइट्स. फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को भी वो कन्वर्ट किस में करते हैं? ग्लूकोज में करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं. सपोज अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग करते समय ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल, सपोज अगर ये जो ग्लूकोज जो लीवर में प्रेजेंट है वो ग्लूकोज अभी यहाँ से कहाँ जाएगा? जनरल सर्कुलेशन में जाएगा, जो हमारे टिश्यू है उस टिश्यू की तरफ जाएंगे. ओके, अगर हम ज्यादा मिल्क खाएंगे तो ज्यादा ग्लूकोज तैयार होगा, तो ज्यादा ग्लूकोज ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में होगा. लेकिन ये जो ग्लूकोज, ये जो लीवर है, उस लीवर का काम होता है जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इसको लगेगा सेल को, उतना ही अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या देगा? उस ब्लड सर्कुलेशन में देगा. और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो अपने इसमें क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा. इसलिए हम इस लीवर को दैट इज द ग्लूकोज बैंक कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके, सो इस ग्लूकोज को क्या, इस लीवर को क्या कहेंगे हम? ग्लूकोज बैंक कहते हैं.
सो ये जनरल सर्कुलेशन में क्या करेगा, फिर ब्लड क्या होगा, एंटर होगा और फाइनली कहाँ पे पहुंचेगा, टिश्यू में या सेल्स में पहुंचेगा। इज इट क्लियर? ओके, अभी हमारा ग्लूकोज कहाँ पे पहुंचा है, फिर सेल के अंदर पहुंचा है, सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचा है। ओके, सेल के कहाँ पे पहुंचा है, साइटोप्लाज्म में। तो इस साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में क्या होते हैं, फिर जो ग्लाइकोलिसिस के लिए, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट तक जो कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, वो सभी एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फिर वो साइटोसॉल में होगा। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पे होगा, फिर इन साइटोप्लाज्म में होगा, एवरी सेल में। इज इट क्लियर? सो देयर आर द 10 स्टेप्स which are present in the glycolysis process. We can deal with the one by one. The first step of glycolysis, that is the phosphorylation. अभी हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कहाँ पे गया है, फिर सेल के अंदर गया है। ओके, कौन सा भी सेल ले सकते हैं आप, मसल सेल है या एडिपोज सेल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्लूकोज विच इज द 6 कार्बन कंपाउंड, ये कितना कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये ग्लूकोज कहाँ पे गया है, फिर सेल के अंदर। ओके, तो इस ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। फॉस्फोराइलेशन मीन्स इस ग्लूकोज को एक फॉस्फेट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वन एंजाइम, दैट इज द exokinase enzyme, and this exokinase enzyme that required the one cofactor, that is the magnesium cation. Okay, so जब ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ओके, मीन्स यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मीन्स जो एटीपी है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप इस ग्लूकोज को अटैच होगा, तो एटीपी का कन्वर्शन किस में होगा, एडीपी में होगा। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। ओके, सो 1 एटीपी यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एटीपी का कन्वर्शन एडीपी में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, दूसरा जो स्टेप है, दैट इज द, दिस इज द इरिवर्सिबल स्टेप। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जो दूसरा स्टेप है, दैट इज द आइसोमराइजेशन, जो रिवर्सिबल स्टेप है, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा। ओके, किसमें होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंड दिस इज phosphoexokinase isomerase enzyme. In the presence of phosphoexokinase isomerase enzyme. Okay, so this is the second step. और जो तीसरा स्टेप है, यहाँ पे फिर से क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। पहला स्टेप कौन सा था, फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पर एटीपी का यूज हुआ। दूसरा स्टेप आइसोमराइजेशन, और तीसरा स्टेप फिर से फॉस्फोराइलेशन, जिसमें फिर से एटीपी क्या होगा, लॉस होगा, इसका कन्वर्शन एडीपी में होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। ओके, it also required the magnesium as a divalent cation, and this fructose 6 phosphate which is converted into the fructose 1,6 diphosphate or bisphosphate. Okay, हमें पता है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ओके, दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 को फॉस्फेट अटैच हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ओके, यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यहाँ पर फ्रुक्टोज को कार्बन नंबर 1 पे फिर से फॉस्फेट अटैच हुआ तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। दिस इज द थर्ड स्टेप। और जो तीसरा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, दैट इज द क्लीवेज। इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम। दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड, कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 ट्रायोस फॉस्फेट क्या होंगे, तैयार होंगे। ओके, एक होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और तीसरा होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो दीज आर द क्या होंगे, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये इसका भी क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा। जो बाकी के जो स्टेप्स है हम दूसरे क्लास में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्टरी स्टेप एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फॉर माय बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। ओके, सेम 3। थैंक यू वेरी मच।